हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। आज हम लोग MS वर्ड 2013 को पढ़ेंगे। इट मीन हमारे इस कंप्यूटर चैप्टर में MS वर्ड 2013 को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे MS वर्ड 2013 में क्या क्या नए नए फीचर्स आए हुए हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो बिना डिले किए हुए, बिना कोई समय व्यतीत किए हुए आइए हम लोग अपने MS वर्ड 2013 को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 2013 को। सो हियर इज इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2013। इंट्रोडक्शन। MS वर्ड is a word processing software. It helps in creating document. It is a part of the Microsoft Office package developed by the Microsoft Corporation. Word processor is an application software that help us to type, edit and format text. There are many word processing software such as Microsoft Word, Perfect and WordPad. Now starting MS Word. To start MS Word 2013, we follow the step given below. So here is some steps. Number 1, click on the start button. You can see that pictures. Second option, click on Microsoft Office 2013 folder. And third one, click on Word 2013. The Microsoft Word windows open. So here you can see that the figure, it means your MS Word 2013 windows open. Here is quick access toolbar, tab, title bar, minimize, close, restore down, maximize, document area, view button, zoom slider, status bar, vertical ruler, horizontal ruler, file tab and ribbon is there. Now component of MS Word, file tab. This tab allows us to create a new document, open an existing document and save our document. Title bar. The title bar is one of the top of the screen. It displays the name of the current document and application. Workspace. Workspace is the area where we enter text. Now ribbon. The ribbon has two parts, tabs and group. Each tab has command arrangement in many groups. When you click on tab, it opens displaying command in different group. The minimize the ribbon button on the right minimize the ribbon and display only the tab. Click on it. Again expand the ribbon back to normal. Now quick access toolbar. Quick access toolbar is present on the title bar. It provides access to the frequently used command. By default, save, undo, redo appear on the quick access toolbar. We can place it above or below the ribbon. Now status bar. A status bar display the information such as word count and page number. Rulers. The rulers are two rulers, horizontal ruler and vertical ruler. The horizontal ruler is present at the top of the document area. It is used to set left and right margin. The vertical ruler is present to the left of the document area. It is used to set top and bottom margin of the page. Cursor insertion point. A cursor is a small flash vertical line in the document area. It shows the position of the text you type. Now entering text. To type text in MS Word, we follow the given steps below. Step 1. Move the mouse to the location where we want the text to appear in the document. Step 2. Click the left mouse button. The insertion point appear. Step 3. Starting typing the text. Saving document. If you are saving your document for the first time, you need to follow the step given below. So here is a first, click on the file tab. Second, click on the save as tab. After that, click on the browse. After that, fourth, type the name of the document and finally click on save button. You can also to shortcut key use to save the document is Ctrl S. Now copy and moving text. Copying text. Copy means the create a duplicate copy of the selected text. The selected text remain at both of location after copying. To copy text, copy and paste command are used. The shortcut key to
Control X cut, Control C copy, Control V paste. So now you can see that first select the text. If you want to copy, first of all select the text. After that, from the clipboard group, click on copy. Step third, bring the cursor to the place where you want to paste the text. Now fourth, click on the paste option to paste the copied text, and your finally copied text will be pasted. Now moving text. Moving means the shift the selected text to another location. The selected text is deleted from its original location after moving. To move text, cut and paste command are used. So here you can see that first select the text. After that, from the clipboard group, click on cut, and third option, bring the cursor to the place where you want to paste the text, and fourth, click on the paste option in the paste the text. Opening an existing document. To open an existing document, we follow the step given below. So here are some steps. Click on the file tab first. Second, click on open option. Third one is the open dialog box opens. Fourth option, select the file. After, click on the open button. And the shortcut key is open a file is Control plus O. It means CTRL plus O. Now editing the text. Editing means to make the change in a document. When we edit text, that means either we are adding something to it or we are deleting something from it. To add the text. To add text, we place the cursor to the left of the text you want to replace. Type the new text. As you type the text to the right of the cursor, text get replaced by the new text. To delete text. To delete a character, place the cursor its right and press the backspace key. To delete a character from its left, place the cursor to its left and press delete key. To delete a block of text, select the text and press either delete key or backspace key. The shortcut key to undo and redo is undo Control Z, redo Control Y. It means CTRL Z, CTRL Y. Now we are going to saving a document after editing. To save a document after editing, we follow the given steps below. So here are some steps. Click on the file tab. The second one is click on the save button. Closing Word 2013. To close the document in MS Word, we follow the steps given below. First, click on the file tab. Second, click on the close button and it will be closed. It means your file will be closed. तो आप लोगों ने देखा, हमने पढ़ा MS वर्ड. इट मीन कि MS वर्ड 2013. और MS वर्ड 2013 हमारा वो होता है कि जिसके द्वारा हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के द्वारा हमें MS वर्ड 2013 मिलता है. और वर्ड प्रोसेसर एक बहुत ही अच्छा खासा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. जो भी करना होता है हम लोग आसानी से कर लेते हैं. तो अभी हमने देखा कि MS वर्ड कई तरह के होते हैं, यानी कि MS वर्ड परफेक्ट होते हैं और MS वर्ड होते हैं. अब हम आते हैं स्टार्टिंग MS वर्ड. कैसे हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे. उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम आसानी से अपने MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो पहला इसमें आता है फाइल टैब. फाइल टैब क्या होते हैं कि दिस टैब अलाउ अस टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि यह एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए देता है. इसके बाद टाइटल बार आता है. तो टाइटल बार हमारा होता है जिसमें कि हमारा ये करेंट फाइल का नेम शो करता है. इसके बाद हमारा आता है वर्क स्पेस. तो वर्क स्पेस वो होता है जहां पर हम लोग अपने काम को करते हैं. इसके बाद हमारा रिबन आता है. तो रिबन हमारे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला होता है टैब्स और दूसरा होता है ग्रुप. इसमें आपको कई तरह के टैब्स मिलेंगे, जैसे होम टैब हो गए, इंसर्ट टैब हो गया, व्यू टैब हो गए, फॉर्मेट टैब हो गए. ये सारे आपको टैब्स मिलेंगे. और जैसे हम लोग इस टैब को क्लिक करते हैं तो इनमें कई सारे आपको ग्रुप्स मिलते हैं और इन्हीं ग्रुप में आपको आपके ऑप्शंस मिलते हैं.
इसके बाद हमको मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस इट मीन की बहुत जल्दी हमको काम करने के लिए, अगर हमें किसी फाइल को सेव करनी है तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव बटन को क्लिक करते हैं। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार हमारा एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि हमारे टाइटल बार के जस्ट ऊपर ही हमें वो दिखाई देता है। उसके द्वारा हम लोग आसानी से अपने इस कोई भी ऑप्शंस को क्लिक कर लेते हैं। इट मीन सेव ऑप्शन हमको आसानी से वहां मिल जाता है, अंडू एंड रीडू का ऑप्शन मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन हमको बाय डिफॉल्ट वहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार हमारा वो होता है जिसके द्वारा हम लोगों के कितने वर्ड हमने वो लिखा है, कितने पेजेस हमने लिया है, ये सारे हमको वहां पर शो करता है। इसके बाद रूलर आता है। तो रूलर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल रूलर जो होता है वो हमारा टॉप में होता है, वर्टिकल रूलर जो होता है हमारा राइट साइड में होता है। तो ये सारे हमारे रूलर होते हैं। इसके बाद कर्सर होता है या इंसरेशन पॉइंट होता है। तो कर्सर वो होते हैं जहां पर हमको एक ब्लैंक कलर का ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई देता है, ये हमारे वर्ड के पेज पर शो करता है। अब हम आते हैं इंटरिंग टेक्स्ट, यानी कि हम लोग अपने टेक्स्ट को कैसे इंटर करेंगे अपने वर्ड के फाइल में। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो कि मैंने आपको उस स्टेप्स को बताया, उस स्टेप्स को फॉलो करके हम आसानी से अपने किसी भी वर्ड को फॉलो कर सकते हैं या किसी भी डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हमें टेक्स्ट को एंटर करना होता है। इसके बाद हम लोग अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और वहां पर इंसरेशन पॉइंट आ जाता है। इसके बाद हम लोग वहां से टाइपिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब जब हमने टाइपिंग कर लिया, यानी कि जब हम टाइप कर लेते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। तो अब उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम लोग या तो शॉर्टकट की यूज करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं CTRL+S। इसमें की CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, या मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप्स को फॉलो करके हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हम लोग फाइल मेन्यू में जाएंगे, होम टैब पर जाएंगे, होम टैब में आपको सेव ऑप्शन मिलेगा और वैसे जैसे क्लिक करेंगे हमको एक हमारा सेव का ऑप्शन खुल जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। इसके बाद आता है कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट, यानी कि अपने टेक्स्ट को कॉपी करना और मूव करना। तो सिंपली अगर हमें कॉपी करना होता है तो शॉर्टकट की होता है CTRL+C, ये हमारा कॉपी का ऑप्शन होता है। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमको जहां पर उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है वहां पर हम लोग क्लिक करके उसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है मूविंग टेक्स्ट। तो मूविंग मीन्स होता है कि उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इट मीन कि वो वहां पर न रह करके कहीं दूसरे जगह पेस्ट करना है। तो ये भी हम बड़े आसानी से कर लेते हैं और इसको करने के लिए हम लोग Ctrl+X का यूज करते हैं। तो Ctrl+X का मतलब होता है कट करना, और जैसे ही हम लोग वहां से कट करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से हट करके, और अगर शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज करते हैं तो दूसरी जगह वो पेस्ट हो जाता है। अब लोग हम आते हैं ओपनिंग एंड एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया है उसको ओपन करने के लिए कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो कि मैंने आपको दिखाया है, या हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं CTRL+O का। इसके बाद हम आते हैं एडिटिंग द टेक्स्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखा है उसको एडिट करना। तो एडिट करने के लिए इट मीन कि हम लोग उसको आसानी से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद एडिट करते हैं और जो भी हमें एडिट करना होता है तो हम एडिट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें आता है डिलीट टेक्स्ट का। तो डिलीट करने का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, उसके जगह पर हम कोई और टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। तो आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी बैक स्पेस एक की होता है, बैक स्पेस की के द्वारा हम लोग आसानी से अपने पुराने वाले टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, या एक डिलीट बटन होता है, उस डिलीट बटन के द्वारा भी हम लोग आसानी से अपने जो भी लिखे गए टेक्स्ट है उसको हम लोग डिलीट करते हैं। इसके बाद होता है कि सेविंग आफ्टर डॉक्यूमेंट, यानी कि हम लोगों ने जब एडिट कर लिया तो एडिट करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो मैंने आपको दिखाया है। फिर से आप लोग अपने फाइल मेन्यू में जाएंगे और उसमें आपको एक सेव ऑप्शन मिलेगा, और सेव ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्लोजिंग वर्ड 2013, यानी अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया है तो उसे क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें कि मैंने आपको बताया है, और मैं आपको बता दूं कि क्लिक ऑन द फाइल टैब, यानी कि सबसे पहले हम लोग फाइल टैब पर जाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन उसमें आएगा एक क्लोज बटन का, और जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे वो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है।
तो ये रहा हमारा वर्ड का इट मीन एमएस वर्ड 2013 का एक छोटा सा पार्ट। और इस पार्ट में आप लोगों ने अपने वर्ड के बारे में सीखा कि वर्ड हमारे क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और वर्ड में क्या क्या फीचर्स आते हैं, यानी कि कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, रिबन्स होते हैं। बाकी का नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।